Okay, hope my screen is visible. Hi, hello everyone. Okay, just to revise, we started with functions. कल हमने functions देखा था, right? Concluded with the lambda function, something with the lambda function. और आपको homework दिया था कि whatever function you have wrote as a homework, आपको वो in the lambda के form. You need to write it in the lambda form, right? Hmm? So hope that you already. Yes, sir. Yes, so it's good. आपने homework complete किया है तो excellent. नहीं किया है तो please do complete your homework. Okay. Okay. So just to revise, there are three types, actually four types of functions available. One is inbuilt functions or built-in function. Example: print, length, uh, type, right? Or integer, int, str. Lot of inbuilt functions are there. आपने document refer किया ही होगा, which I have already shared. Okay. Then second is user defined function. User defined function में क्या रहता है? You create your own function by using keyword def. Then you create a give function name and then you pass arguments, right? So that is nothing but function definition, and then you call the function. So function call, right? So it's in the user defined function. And third type is a lambda function. Lambda function is nothing but optimized version of user defined function. जो user defined function है उसको आप optimize करके you can write it in one single line. So that is called a lambda function. Then there is a fourth type of function as well called a recursive function. Generally we don't use that function, but if you are into software development, application development, people do use the recursive function. Recursive function means calling, Following function itself. yes, the function will call itself. Uh, in our case, if I give you an example, suppose आपने लिखा define sum of numbers, right? And you passed two number one comma number two. और हम क्या करते हैं, we'll write it in a shortcut, return num1 plus num2, right? So this is a function. ये हो गया function definition. And if I have to call this function, how do we call? Sum of number, and I pass 12 comma 34, so I get an answer. So what if I call, ये हो गया function call, ये हो गया definition. What if I write this sentence inside this function? So what will be the answer? The moment it will create itself, okay? Maybe logic के बाद आप लिख सकते हो, actually return statement is the last one, but for your understanding. So ये function call हो गया. The moment ये line run होगा execute, तो ये क्या करेगा, वापस इस function को call करेगा, called sum of the numbers, and it will send this number here 12,34. Again नीचे आएगा वापस sum of the number, it will call this number, right? So generally recursive is nothing but one function, it will call one more function, this will call one more function, this will call one more function, like this in the chain it will continue. So it is called a recursive function. So good to know, not directly important, as in you are not going to directly use it unless and until there is one specific program. Write a Python
program for factorial of a number. फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर लिखने का एक शॉर्टकट तरीका है यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन. ओके, सो यू कैन सिंपली सर्च इट ऑनलाइन. आपको फैक्टोरियल प्रोग्राम मिलेगा, फैक्टोरियल यूज करके पाइथन प्रोग्राम मिलेगा. 3 लाइन का ही कोड है वो, 3 और 4 लाइन मैक्सिमम. ओके, अंडरस्टूड. सो दीज आर द 4 टाइप्स और हमने चारों टाइप्स कवर किया है, राइट. Inbuilt function. There's one function which I wanted to show you. Yeah, this one. So here what is happening is I'm calling the function itself. I'm calling multiple functions, a function inside a function. As in इसको function chain भी बोलते हैं, chain of a function. So what happens here is, suppose you need to create a student mark sheet. Student की mark sheet create करना है. So what happens? Name, number, subject, marks, general terms, general fields है वहाँ पे, and based on the student he will get different marks. But हर student के marksheet पे school का नाम same रहेगा, school के contact details, address, location, ये सब कुछ data same रहेगा, right? So you don't have to create this data again and again. तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया def contact. तो ये क्या करता है, सिर्फ प्रिंट करता है किसका, स्कूल का एड्रेस और स्कूल एड्रेस. ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन, ये हो गया एग्जीक्यूट कॉलिंग. ये देखिए, राइट. नाउ आई विल राइट वन मोर प्रोग्राम कॉल्ड फुल डिटेल्स. यहाँ पे आई विल कलेक्ट स्टूडेंट नेम, उसके मैथ्स के मार्क्स, साइंस के एंड इंग्लिश के मार्क्स, राइट. तो ये यहाँ पे मार्क्स मैंने प्रिंट किया है एंड आई एम कॉलिंग द फंक्शन कॉल्ड कॉन्टैक्ट, राइट. ये जो ऊपर फंक्शन है कॉन्टैक्ट, हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं. हॅलो सर, आवाज नाही येते तुमचा. Sorry. ओके. Okay, so this is nothing but a function definition. मतलब स्कूल का एक मार्कशीट है, मार्कशीट बनाना है. इन द मार्कशीट यू विल हैव स्कूल एड्रेस, कॉन्टॅक्ट डिटेल सेम रहेगा सारे स्टूडेंट के ऊपर, राइट. सगळ्या मुलांचं स्कूल एड्रेस, कॉन्टॅक्ट डिटेल, नेम विल बी सेम, बट क्या चेंज होगा, सिर्फ मार्क्स. तो एक फंक्शन बना है कॉल्ड कॉन्टैक्ट. it will print school contact detail. Okay, execute. ये हो गया, स्कूल के contact details print हो गए. now I will create one more function जहाँ पे मैं student के marks enter करूँगा. name of the student, maths, marks of maths, marks of science and marks of English, right. ये हर एक स्टूडेंट के लिए होगा, सॉरी ये, बट ओके. तो ये आइडियली केस में क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट फंक्शन डेफिनेशन, DEF, राइट. फंक्शन डेफिनेशन. बट इन दिस फंक्शन डेफिनेशन आई एम कॉलिंग वन मोर फंक्शन कॉल्ड कॉन्टैक्ट. तो ये क्या होगा, ऐसे सिक्वेंशियली रन होगा. देन इट विल कॉल कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद ये फंक्शन एंड हो जाएगा, राइट. सो इसको फंक्शन चेन बोलते हैं और चेनिंग, फंक्शन चेनिंग. सो ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, लेट्स सी. एग्जीक्यूट एंड दिस विल क्रिएट अ ब्लैंक लाइन. सिर्फ प्रिंट लिखा तो ब्लैंक लाइन क्रिएट होता है. ओके, सो इफ आई एग्जीक्यूट दिस कोड नाउ, मोमेंट मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, देखिए, कौन, नेम ऑफ द स्टूडेंट,
marks. I'm just entering some random marks, enter. ये देखिए, ये हमने लिखा था क्या हमारे फंक्शन में? नहीं, हमने यहाँ तक ही लिखा था ना. You can check. A is name, has scored B marks in math, C marks in science, D marks in English. So ये फंक्शन प्रिंट यहाँ पे ब्लैंक लाइन क्रिएट हुआ है एंड ये कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट कहाँ पे है? यहाँ. सो दिस इज व्हाट एग्जीक्यूशन. क्लियर? सो इसको फंक्शन चेन और फंक्शन चेनिंग भी बोलते हैं. कॉलिंग द फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन. एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, सो नेक्स्ट विल चेक. नेक्स्ट एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे. इट इज कॉल्ड कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट. मोस्टली आप लोगों ने सीखा होगा कि देयर आर सम काइंड ऑफ अ लूप, फॉर लूप, while loop, if else loop. So these loops or these statements are called a control flow statement. Okay, control flow statement क्यों कहते हैं? Why? Because I want to control how many times the program is executed. फंक्शन हम क्यों क्रिएट करते थे? बिकॉज वी वॉन्ट टू मिनिमाइज द कोड. मतलब कोड लिखना मिनिमाइज करना है, राइट? वी वॉन्ट टू ऑप्टिमाइज द कोड, वी वॉन्ट टू शेयर द लॉजिक. इसके लिए हम, और रिपीटेशन ऑफ द कोड अवॉइड करने के लिए. बट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या करते हैं? एग्जीक्यूशन. आपको मल्टीपल टाइम सेम लाइन रन करना है. सपोज आपको ये फंक्शन है, इसको 10 बार रन करना है. ये एक बार हो गया कॉपी, सेकेंड टाइम यहाँ पे ऐसे, ये सेकेंड टाइम हो गया. तो ऐसे आपको 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है और ऐसे रन करना है 10 बार. That time you have to use something called control flow statements. Control flow statements आपको use करने पड़ते हैं. Okay, understood? So what are control flow statement? So there are if, else and elif. तो this is a control flow statement में पहला है if else statement और if else elif. elif मतलब else और if का combination है ये. Okay, else और if, else plus if is nothing but elif, elif. Okay, multiple conditions के लिए elif use होता है. Okay, then there are some loop as well. for loop है, while loop. So different loops are also available. So let's see one by one branching कैसे करते हैं. पहले स्टार्ट करते हैं if statement. Okay, if इसको लिखा कैसे जाता है? सिंटैक्स if में से I small condition colon and then statement 1 and statement 2. आपको जो भी लॉजिक लिखना है वो इसके नीचे लिख सकते हैं, राइट? सो जनरली इसको बोला जाता है, दिस स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड इफ ब्लॉक. तो ये हो गया इफ ब्लॉक. ऐसा क्यों? बिकॉज ये कंडीशन का आंसर जब पॉजिटिव आएगा, ट्रू आएगा, then only if block will run, or else if block will not execute. Okay, so this is what if block is and इसके regarding वो condition है. Clear? So it's called if statement. How we can write if? Okay. The condition यहाँ पे important है. The condition can be a value, variable or expression. मतलब ये condition वैल्यू, वेरिएबल और एक्सप्रेशन तीनों हो सकते हैं.
ओके सॉरी, सो लेट्स, मतलब ये कंडीशन मोस्टली लॉजिकल होना चाहिए जिसका आंसर ट्रू एंड फॉल्स में आता है, राइट? और वो आंसर आपको डिसाइड करेगा कि वेदर ये स्टेटमेंट्स रन करना है कि नहीं। ओके, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करना है कि नहीं ये डिसाइड होगा इस कंडीशन के ऊपर। तो ये कंडीशन का आंसर क्या आना चाहिए? इधर ट्रू, ट्रू आ गया तो क्या होगा? इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इस स्टेटमेंट का आंसर फॉल्स आ गया तो इफ स्टेटमेंट विल नॉट रन। लेट्स सी द प्रोग्रामेटिकली देखते हैं। पहले तो कंडीशंस क्या क्या होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। these are nothing but a logical conditions, right? मान लीजिए नंबर 1 इज इक्वल टू 20 है एंड इफ आई राइट नंबर 1 नॉट इक्वल टू 10, मतलब 20 नॉट इक्वल टू 10, इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर ट्रू, राइट? दैट्स व्हाट यू विल गेट इट, ट्रू। तो ये हो गया एक लॉजिकल कंडीशन। व्हाट इफ राइट ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, सर ये ग्रेटर देन है, दैट वाज द लेस देन, एग्जीक्यूट, आंसर आएगा ट्रू, राइट? सो ऐसे ये हो गया लॉजिकल कंडीशंस। सो आई नीड टू राइट सच काइंड ऑफ कंडीशंस हियर। चलो विल डू द एग्जांपल। एक नंबर 1 करके वेरिएबल है, उसमें 4 हमने स्टोर किया है। देन इफ कंडीशन क्या लिखा? नंबर 1 इज ग्रेटर देन 5, ये हो गया कंडीशन। फिर आगे आ गया कोलन। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद क्या आना चाहिए? ये प्रिंट होना चाहिए, आई एम इनसाइड इफ स्टेटमेंट एंड द नंबर, मतलब नंबर 1 इज ग्रेटर देन 5। सो लेट्स गो विद द पॉजिटिव कंडीशन। नंबर 1 में करंटली आई विल टेक 34। ओके, चलिए अभी बताइए आप क्या क्या आना चाहिए इधर। नंबर 1 इफ क्या आएगा यहाँ पे? इफ नंबर 1 की जगह 34 ग्रेटर देन 5, इसका आंसर क्या आता है? 34 ग्रेटर देन 5 का ट्रू 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 आएगा, राइट? तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा? इफ ट्रू, राइट? तो इफ के आगे जब भी ट्रू आता है तब क्या होता है? नीचे के ये लाइन एग्जीक्यूट होते हैं, राइट? सॉरी, मतलब दिस लाइन एंड दिस लाइन विल एग्जीक्यूट। सो लेट्स सी एग्जीक्यूट होता है क्या। ये देखिए हो गया, आई एम इनसाइड इफ स्टेटमेंट, नंबर 1 में क्या था? 34 इज ग्रेटर देन 5, राइट? इसका अपोजिट करके देखिए, instead of 34 take 2। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? इफ 2 ग्रेटर देन 5, आंसर क्या आएगा? फॉल्स, राइट? तो फॉल्स आइडियली क्या रहता है? फॉल्स आने के बाद नीचे के 2 लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो चेक क्या आंसर आता है? कुछ भी नहीं, ब्लैंक है, क्योंकि इफ के आगे ट्रू नहीं आया है, राइट? क्लियर? अंडरस्टूड? तो इंस्टेड ऑफ द कंडीशन, देखिए जो हमने यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है ना इफ फॉल्स नहीं आता, इफ ट्रू आता है। तो इंस्टेड ऑफ कंडीशन डायरेक्टली ट्रू लिख के देखिए, इट शुड वर्क ना, जो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, राइट? इफ के आगे ट्रू, इसके अंदर जो भी आप स्टोर करोगे है, देखिए 2 इज ग्रेटर देन 5 बिकॉज आई एम फोर्सिंग द इफ लूप। तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉल्स लिख के देखिए, एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट? सो दैट्स व्हाट आई showed you the proof, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ लॉजिक। दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्लियर? समझ में आया सबको? ये समझ में आया इफ का? अभी एक प्रॉब्लम आ रहा है, एल्स
फॉल्स के बाद कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है बट मुझे प्रिंट करना है कुछ ना कुछ, तो मैं क्या लिखूंगा, एल्स, एल्स कोलन एंटर, लिखिए प्रिंट इनसाइड ए एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट। देखिए यहाँ पे फॉल्स लिखा तो एल्स इफ वाला रन नहीं होगा, राइट, ये रन नहीं होगा, बट क्या रन होगा देन, एल्स, एल्स में कौन है ये, आई एम इनसाइड एल्स ब्लॉक। ट्रू लिखा तो ट्रू ब्लॉक रन होगा। क्लियर, ये है इफ एंड एल्स, ऐसे। इसके 2-3 एग्जांपल है। चेक, यहाँ पे एज 18 है, इफ एज इज इक्वल टू 18 रन, इक्वल टू डबल इक्वल टू है तो कंपैरिजन ऑपरेटर उसका आंसर, राइट, नंबर नहीं चाहिए, एज चाहिए। few more example, greater than, less than, ampersand to, odd and even number। ये देखिए इनपुट, ये इनपुट स्टेप है यहाँ पे, लॉजिक है यहाँ पे, एंड आउटपुट यहाँ पे। फाइंड द ऑड नंबर 34, नहीं, राइट, एग्जीक्यूट, और ऑड नंबर बोलिए, गिवन नंबर इज ऑड, राइट। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। if conditions, how we are implementing conditions। हेलो yes, सर, एक बार शॉर्टली फिर से एक्सप्लेन कर दो। okay, so if में आपको क्या लगता है, if is a control flow statement, so I can decide when to execute this statement। जो if के अंदर हम लिखते हैं उसको कब एग्जीक्यूट करना है ये डिसाइड होता है, और हमें ये कंट्रोल करना है, तो इन दैट केस वी यूज इफ। देन इफ के आगे रहता है कंडीशन, ओके, तो ये कंडीशन डिसाइड करता है, ये जो आगे का कंडीशन है ये डिसाइड करता है नीचे के लाइन एग्जीक्यूट होंगे या नहीं, राइट। तो कैसे डिसाइड होता है, तो जनरली ये जब इसका आंसर इफ इट इज ट्रू तो क्या होगा, नीचे के लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और मान लीजिए इसका आंसर आया फॉल्स, ओके, तो नीचे का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट आई प्रूव, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है। इसका एक एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे, राइट, ट्रू करके। क्लियर, देन ये जो नंबर है इन दिस एग्जांपल, इस केस में इनपुट है, यूजर डिफाइंड इनपुट, इनपुट फंक्शन हमने देखा है, राइट, कल और उससे भी एक दिन पहले। सो आई एम टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे, स्टोरिंग इट इन अ नंबर, राइट। इफ नंबर %2, मतलब रिमाइंडर निकाल रहा हूं मैं, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 आ गया तो क्या होता है, प्रिंट द गिवन नंबर इज ऑड, और रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 1 नहीं आया तो क्या रहेगा, वो इवन नंबर रहेगा, राइट। अंडरस्टूड ऑड एंड इवन का लॉजिक। सो इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0, 0 से इक्वल नहीं है तो भी ऑड आएगा। इसको इवन बनाना है तो इक्वल टू 0 करो, रिमाइंडर 0 आता है ना ऑड इवन में। होप आपको पता है ऑड इवन का लॉजिक। इफ एनी नंबर डिवाइडेड बाय 2 और कुछ रिमाइंडर आ गया, Yes, sir. हाँ, तो उसको, रिमाइंडर आ गया तो उसको बोलते ऑड, रिमाइंडर नहीं आया तो उसको बोलते इवन। तो इक्वल टू 2 किया हमने यहाँ पे, फिर इवन।
Okay, so this is how you get it. 15 की बजाय 14 ले लो, इवन। ये अलग अलग जो लॉजिक है इसको भी कंबाइन कर सकते हैं। ऑड नहीं है तो वो क्या रहेगा, इवन। तो यही हमने आगे जाके लिखा है। सो यू कैन राइट लॉजिक हियर, इफ ऑड नहीं है एल्स क्या लिखना है, इवन। इफ कोई नंबर ऑड नहीं रहता तो क्या रहता है, इवन रहता है। ओके, ये हो गया इफ। एल्स का यहाँ पे आपको लिखा है हाउ सिंटैक्स, इफ कंडीशन स्टेटमेंट एल्स एंड स्टेटमेंट। इफ के आगे ट्रू आएगा तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 रन हो गए। इफ के आगे फॉल्स आ गया यहाँ पे तो एल्स के 4 एंड 5 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे, राइट। तो इसका एक एग्जांपल है, देखिए नंबर 2 में 34 स्टोर हुआ है, नंबर 2 ग्रेटर देन 10, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो क्या एग्जीक्यूट होगा, ये दोनों, राइट। इफ इस यहाँ पे मैंने 4 कर दिया तो नंबर 4 ग्रेटर देन 10, आंसर क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स के बाद कौन एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये दोनों। चेक, ये एग्जीक्यूट हो गया, राइट। सो अभी इसको फॉल्स कर दीजिए, ये हो गया। I am inside else statement, 4 is smaller than 10. समझ में आया सबको। ऑड एंड इवन का प्रोग्राम यहाँ पे भी वही लिखा है, इफ द नंबर इज इवन तो प्रिंट, एल्स ऑड, नंबर इज ऑड, नंबर इज इवन। क्लियर। इफ एल्स इसका वो भी है, वोटिंग होमवर्क में आप ये प्रोग्राम कर सकते हो, इज पर्सन एलिजिबल टू वोट और नॉट, राइट। 18 प्लस है तो वो वोट कर सकता है, नहीं है तो he is not eligible। क्लियर, समझ में आया सबको, हाउ यू कैन क्रिएट सच सिनारियोज। यस, नो, सिनारियोज समझ में आया, ओके। ओके, एक्सीलेंट। सो थर्ड वेरिएशन है इसका एलिफ। मान लीजिए आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करना है तो दैट टाइम यू नीड टू राइट वन मोर इफ स्टेटमेंट ना। मान लीजिए आपके 10th के मार्क्स और परसेंटेज क्या रहता है, लेस देन 35% है तो आप फेल हो जाओगे, राइट। मोर देन 35 to 50 बी क्लास, 50 to 75 ए क्लास, 75 एंड अबव डिस्टिंक्शन। तो यहाँ पे आप तो मल्टीपल कंडीशन चेक कर रहे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चेक कर रहे हो, राइट। तो उस केस में यू कैन यूज एल इफ। ओके, ओके, एक्चुअली आई गॉट वन इम्पोर्टेंट कॉल, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है मुझे। So, sorry for the inconvenience. We'll continue elif का जो पार्ट है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे, होप यू डोंट माइंड। ओके, चलेगा। यस। तो होमवर्क में आपको एज का प्रॉब्लम करना है, वेदर द पर्सन कैन वोट और नॉट। सेकंड, वेदर द पर्सन इज सीनियर सिटीजन और नॉट। पता है ना, सीनियर सिटीजन मतलब मोर देन above 60, 60. 60 वगैरह, राइट। एंड टेक 2-3 इन जनरल एग्जाम्पल, आपको जो लगे यू कैन राइट सम एग्जाम्पल एंड चेक। अंडरस्टूड, इज इट पॉसिबल। इफ एलिफ सॉरी इफ एंड एल्स का प्रोग्राम, एलिफ विल स्टार्ट टुमारो, नॉट एन इशू।
कल हम करेंगे विद इन इट्स द सेम एक्चुअली सो हेलो यस सर आपण सुट्टीला सगळी स्टडी मटेरियल करू शकेल का तुमचा आवाज ब्रेक होतोय हा बोला सर आम्हाला जर सोपं जाईल तसं आम्हाला काही स्टडी मटेरियल भेटू शकतं का म्हणजे PDF वगैरे स्टडी मटेरियल इन जनरल तुम्ही गुगल ड्राईव्ह मध्ये ऑलरेडी फोल्डर आहे स्टडी मटेरियल म्हणून त्यात तुम्ही रेफर करू शकता आय हॅव शेअर्ड सम PDF and different files are there. ओके ओके Okay, so good then. Thank you. Thanks a lot, everyone. I will upload this lecture on YouTube as well. Okay. Thank you. Thanks a lot, everyone.